Hello to all students. I am back with my new video that is of chapter number 1 of an economics for class 10th Punjab Board students, that is economics and introduction. So let's start with the chapter. Economics. Economics का मीनिंग क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में इकोनॉमिक्स बोलें तो एक हाउस होल्ड मैनेजमेंट है. इकोनॉमिक्स वर्ड बना कैसे है? ग्रीक वर्ड से. कम टू द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर, दैट इज ग्रीक वर्ड से इकोनॉमिक्स पढ़ा है. उसका वर्ड है ओएकस. ओएकस एंड नेमिन. ओएकस मीनिंग हाउस होल्ड एंड नेमिन मीनिंग मैनेजमेंट. यानी सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो हाउस होल्ड को मैनेज कैसे किया जाता है उसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. इकोनॉमिक्स का मीनिंग सिंपल लैंग्वेज में है कैसे हाउस होल्ड चीज़ों को मैनेज करना. लाइक इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट है जो हाउस होल्ड मैनेजमेंट से डील करता है. दीज ऑल मेथड्स इंक्लूड पर्सन कैन मैनेज हाउस और द गवर्नमेंट कैन मैनेज नेशन. ये गवर्नमेंट नेशन को कैसे मैनेज कर सकती है विद दियर बजट. सपोज इफ़ वी हैव ₹100 एंड वी हैव टू मैनेज दैट how we spend the ₹100, how we have a limited sources but we have unlimited needs, and that is mean as economics how to manage our budget, how to manage our needs in limited sources. So let's start with the meaning. Simply it gives that economics means household management. It deals with how an individual or a state can use their limited sources which have alternate uses in an efficient manner in order to maximize individual or social welfare. You can write also this, that economics means household management. It deals with how an individual or a state can use their limited resources. People have alternate resources with an efficient manner. People have to maximize their needs. People wants an individual always want their needs properly, but it's not possible. How it's possible? We have limited resources, then how can we complete our unlimited needs? That's why the economics made. We have to make budget and then we can complete our needs. Secondly, now let's come the definition of economics as per Adam Smith. Adam Smith was the first person who introduced economics. As per Adam Smith, definition of economics was given by famous economist and father of economics, that is Adam Smith. An inquiry into nature and causes of wealth of nation. According to him, economics एक इंक्वायरी है नेचर के बीच में और causes of wealth है nations के लिए. उसके बाद और भी बहुत सारे लोगों ने दी, लाइक इसमें मार्शल्स दिया हुआ है, देन यू कैन फर्दर ऑन मार्शल्स. And we will read more definitions in further on you take economics in +2 class. So you can do any one definition as per your choice. Now let's come to branches of economics. There are two types of economics which are given at page number 141. That is 1.3.1 पे लिखा है microeconomics and 1.3.2 पे लिखा है macroeconomics. Microeconomics means a single, like a single house, a individual company, and macroeconomics means full economy. Full economy has an economy whole, large scale. Microeconomics में एक घर की बात होती है. The activities of an individual or an household, एक person की और एक household की बात होती है. Macroeconomics में पूरे country की, पूरी firms की, इनकी बात होती है. So let's start. The word micro has been derived from Greek word. Micros means small. Macroeconomics studies economics activities जो कि small level पे करता है, जिसमें आती है individual level पे और household level पे. The subject matter of macroeconomics include theory of demand, theory of supply, theory of production, theory of cause, etc. And macroeconomics, the Greek word से बना, that is macros, like large. So macroeconomics studies economic activities at large scale or level of economy as a whole. पूरे इकोनॉमी के लेवल पे होता है. और दी मैक्रोइकोनॉमिक्स के जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट कंजम्पशन, नेशनल इनकम, एक्सेट्रा. नाउ लेट्स कम टू पेज 142. कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू मैक्रोइकोनॉमिक्स. फर्स्ट, कंजम्पशन. जनरली जो हम कंजम्पशन को कंसीडर करते हैं वो हम ईटिंग समथिंग करते हैं.
बट इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन का मतलब होता है हमें अलग अलग तरह के गुड्स और सर्विसेज यूज़ करना हमारी डेली लाइफ में, हमारी सेटिस्फेक्शन के लिए, डायरेक्ट सेटिस्फाई करने के लिए, हमारी वांट्स के लिए। जब भी हम कोई भी गुड सर्विस यूज़ कर रहे हैं, वी आर कंज्यूमिंग द गुड्स और सर्विसेज। इफ़ दिस हैपन, सम ऑफ आवर वांट्स आर फुलफिल एंड वी गेट सेटिस्फेक्शन इन रिटर्न्स। जब भी हम कोई गुड्स और सर्विस यूज़ कर सकते हैं और कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसे हम कंज्यूम करना कहते हैं इकोनॉमिक्स के बीच में। तो वो हमारी उससे कुछ गुड्स और सर्विसेज की वजह से सेटिस्फेक्शन हो जाती है, कोई नीड्स पूरी हो जाती हैं, तो एक बार के लिए हम सेटिस्फेक्शन यूज़ करते हैं। इफ़ वी आर यूजिंग पेन, क्लोथ, नोटबुक, बेड, पेन, फैन, बेंच एक्सेट्रा, देन वी कैन से दैट वी आर कंज्यूमिंग दीज गुड्स। हम इन गुड्स को यूज़ कर रहे हैं तो हम उन्हें कंज्यूम कर रहे हैं। उसी हिसाब से सिमिलरली उसके अलावा टेकिंग ट्यूशन, कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर और अ लॉयर, सम ऑफ एग्जाम्पल्स आर कंज्यूमिंग सर्विसेज। ये कंज्यूम कर रहे हैं हम सर्विसेज, ट्यूशन लेना, लॉयर से मीट करना या डॉक्टर से कंसल्ट करना। द पार्ट ऑफ इनकम स्पेंड ऑन कंजम्पशन इज़ नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो भी इनकम हम कंजम्पशन पे खर्च करते हैं उसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इसका मतलब है अगर आपके पापा की इनकम 50,000 है, देन ही स्पेंड 30,000 ऑन सेटिस्फाइंग वेरियस नीड्स ऑफ द फैमिली। तो उन्होंने 50,000 में से 30,000 रुपये अपनी फैमिली की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए लगा दिया। देन दिस अमाउंट 30,000 इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ योर फादर। तो जो 30,000 खर्चा किया है वो आपके पापा की कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगी। नेक्स्ट, सेविंग्स। तो अगर हम ऊपर वाले में से लेते हैं सेविंग्स, हम अपनी इनकम में से क्या सेव करते हैं। ऊपर वाले में जैसे हमने जो 30,000 खर्चा किया था वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ गया था, यानी कंजम्पशन में। तो जो बचा हुआ 20,000 था वो हमारी क्या हो गई, सेविंग्स। हम सेविंग्स के लिए उसको बैंक में डिपॉजिट भी कर सकते हैं, अपने पास घर में भी रख सकते हैं। हमारी इनकम सैलरी सपोज टोटल 80,000 है, 80 में से हमने 30,000 खर्चा कर दिया हमारी अपनी वांट्स को क्लियर करने के लिए, हमारी वांट्स को फुलफिल करने के लिए, और जो बचा 50,000 है वो हमारी पर क्या हो गई, सेविंग। सेविंग इज नॉट कंपल्सरी दैट एवरी मंथ हैव सेम सेविंग। किसी टाइम पे ज़्यादा खर्चा भी होता है, किसी टाइम पे कम खर्चा हो सकता है। इट्स नॉट कंपल्सरी कि एवरी मंथ हमारी एक ही जितनी सेविंग्स होंगी। नाउ लेट्स कम टू इन्वेस्टमेंट। Investment means increase in stock of capital in any given period of time. Capital means anything that gives value or advantage. जो भी चीज़ हमें advantage दे और value दे। Generally इस time period में इसका time होता है एक period का। Stock of capital means amount of capital of goods like machines held by producer. There is change in stock of these capital goods. It means the producer has made some expenditure on these. This is called investment expenditure. अगर प्रोड्यूसर अपने एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट में कोई भी क्लीन करता है, अपने स्टॉक पे पैसे बढ़ाता है, कम करता है, और वो प्रोड्यूसर ने सब एक्सपेंडिचर और डाले हैं, कम करे हैं, तो उसे हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर प्रोड्यूसर ने मशीन बनाई 5 लाख के हिसाब से इन इस फैक्ट्री इन इस प्रीवियस ईयर, दिस ईयर ही हैज़ मशीन वर्थ 12 लाख, उसने 12 लाख की एक और बनाई है। इट मीन्स ही हैज़ डन एन एक्सपेंडिचर ऑफ 7 लाख, उसने एक्सपेंडिचर पे खर्चा किया है 7 लाख का ऑन दीज मशीन। सो दीज एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो उस एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। अपनी कैपिटल का मतलब होता है इन्वेस्ट करना, अपनी कंपनी में कुछ इन्वेस्ट करना, अपने बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करना, कुछ नई चीज़ का इंट्रोडक्शन लेकर आना पैसे खर्च के, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कह देते होते हैं। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन, बढ़ना। इन्फ्लेशन किसी में भी हो सकती है, गुड्स में भी हो सकती है, गुड्स बढ़ गए, पैसे में हो सकती है, पैसा बढ़ गए। जब आरबीआई मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके बारे में हम फर्दर ऑन पढ़ेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम सेंट्रल बैंक भी कहते हैं, कि आगे फर्दर ऑन चैप्टर्स भी आएंगे, हम उसमें रीड करेंगे डीपली। बट फिलहाल सिंपली जब भी हम आरबीआई को पता है कि लोगों को लोन ज़्यादा लेना चाहिए, तो आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा कम करता है, ज़्यादा मंदी कर देता है, पैसे की कमी हो जाती है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लें। अगर पैसे की बढ़त हुई या किसी भी चीज़ की बढ़त हो तो वो इन्फ्लेशन होता है। अगर पैसे की कमी हो या किसी भी चीज़ की कमी हो तो उसे डिफ्लेशन कहते हैं। सो द वर्ड इन्फ्लेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड इन्फ्लेट, which means to expand. Like we often inflate a balloon and it expands its size. अगर हम बैलून को फुलाते हैं तो अपना साइज़ बढ़ाता है, कम नहीं करता। We have to keep one thing in mind. If we really want to inflate the balloon, we have continuously fill air in it. अगर हमने
उसको ज़्यादा ही बढ़ाना है तो हमें उसमें कंटिन्यूसली एयर फिल करनी है बैलून के अंदर, तभी वो बढ़ता है। जनरली इन्फ्लेशन मीन्स राइज इन प्राइस। इन्फ्लेशन का मतलब ही क्या होता है? पैसे का बढ़ना, बट इट्स नॉट ट्रू। इफ़ द प्राइजेज आर डिफरेंट, गुड्स एंड सर्विसेज राइट at one time and fall in another time, it will be not termed as inflation। अगर प्राइस बढ़ते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज राइज होती हैं उसी टाइम पे, फॉल इन अदर टाइम, तो वो भी इन्फ्लेशन नहीं कहलाता। प्राइजेस बढ़ेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज कम होंगी, मीनिंगली इकोनॉमिक्स में ये होता है बढ़ना, उसे कहते हैं इन्फ्लेशन पीरियड ऑफ टाइम। इन्फ्लेशन गवर्नमेंट की तरफ से तभी आता है, प्राइसेस तभी बढ़ते हैं जब पीछे से गुड्स की शॉर्टेज होती है। सिंपल है कि एक अगर एप्पल 50 रुपीज़ के जी होंगे तो अगर हम लेना चाहें तो 200 रुपीज़ में वो 4 kg आएंगे। अगर वही एप्पल 20 रुपीज़ के जी होंगे तो वो 200 में कितने सारे आ जाएंगे। तो ऑब्वियस है जब 20 रुपीज़ होंगे तो मोर देन लोग प्रेफर करेंगे लेना, पर जब 50 होंगे तब लेस लोग करेंगे, बिकॉज इट्स नॉट अफोर्डेबल टू ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ पीपल। ये सिंपल बात आती है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। सो डिमांड पुल टाइप एंड कॉस्ट पंच टाइप। डिमांड पुल टाइप में जब भी एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी का बढ़ता है, एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा, तो उसे कहते हैं शॉर्टेज ऑफ गुड इन द इकोनॉमी। तब हमारे इकोनॉमी में जो गुड्स होते हैं उसकी शॉर्टेज हो जाती है, तो जो एंटरप्राइजेज होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो प्राइसेस को बढ़ा देते हैं ताकि गुड्स उन्हें और ज़्यादा प्रॉफिट दें और वो और माल बना सकें। कॉस्ट पंच इन्फ्लेशन, व्हेन कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसर्स इंक्रीजेज, द राइज इन प्राइस ऑफ गुड मेंटेन देयर प्रॉफिट। जब भी गुड्स की कॉस्ट बढ़ाई जाती है प्रोड्यूसर की तरफ से, तो जो उनका प्रॉफिट होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज़ द मेजर विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर विच आर फॉलोज होलसेल प्राइस इंडेक्स, रिटेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल में है, ये एक कंस्ट्रक्ट होता है प्राइजेज प्रिवेलिंग इन होलसेल मार्केट। उसमें आता है सर्टेन सेट ऑफ गुड्स एट 675% वर आर एडिड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज़ मेजर्ड वीकली बेसिस बाय गवर्नमेंट इन इंडिया। उसके बाद इट इज़ करेक्ट रिटेल प्राइस में आ गया, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन प्रिवेलिंग इन रियल रिटेल मार्केट। It includes essential items used by households. It includes ration, clothing, etc. Ration means grocery. It is measured by monthly basis by Indian government. Supply of money. Supply means total amount of anything which comes to the market by producers. किसी भी चीज़ की टोटल अमाउंट जो मार्केट में आती है प्रोड्यूसर की तरफ से। एग्जाम्पल इसके हिसाब से देते हैं, एक प्रोड्यूसर ने 100 पेंस बेचे, और प्रोड्यूसर ने मार्केट में बेचने के लिए 100 पेंस भेजे, देन दिस अमाउंट ऑफ 100 पेंस इज कॉल्ड सप्लाई। सिमिलरली सप्लाई ऑफ मनी मीन्स अमाउंट ऑफ मनी सेंड बाय प्रोड्यूसर ऑफ मनी इन द मार्केट। सो हु सेंड मनी इन द मार्केट? दैट इज RBI, Reserve Bank of India, which is similarly called Government of India, Reserve Bank of India, and Reserve Bank of India is also called Central Bank of India. So हमारे कंट्री में या किसी भी हमारे इंडिया में मनी आती है RBI की तरफ से, that is Central Bank of India. Now let's come to topic 1.4.6, that is on page 146, that is government budget. As we prepare budget for our house because we have limited sources in comparison to our wants. हम अपने घर के लिए भी बजट बनाते हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं हमारी वांट से ज़्यादा, मतलब हमारी वांट से कम होते हैं, तो हम उन्हें पूरा करने के लिए एक बजट बनाते हैं। इन द सेम वे गवर्नमेंट भी बजट बनाती है नेशनल इकोनॉमी, बिकॉज नेशनल हमारी इकोनॉमी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं as comparison to its expenditure, because the reason the government has to face the problems of scarcity and has to prepare budget. Otherwise government को scarcity face करनी पड़ेगी, otherwise government को problem face करने की, पैसे की मंदी face करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। काम शुरू करने से पहले ही गवर्नमेंट बजट का मतलब होता है वो बजट बना के रखती है गवर्नमेंट, आइटम वाइज एक्सपेक्टेड रिसिप्ट।
गवर्नमेंट के पास पहले से ही हर चीज़ का बजट रेडी होता है। कुछ भी बनाना हो, गवर्नमेंट कोई भी काम करती है, उसका बजट पहले तैयार रहता है ताकि कोई दिक्कत ना आए, कुछ ना आए। ऑलमोस्ट ईयर एंड में हमारा बजट तैयार होता है नेक्स्ट पूरे ईयर का। इट ऑल्सो प्रिवेंट गवर्नमेंट सपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गवर्नमेंट बजट का सिंपल मीनिंग ये है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं पूरे कंट्री के रिलेटेड। वेरियस आइटम्स ऑफ गवर्नमेंट बजट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट हमें क्या क्या प्रोवाइड करती है? डन इन डिफेंस ऑफ द कंट्री, पुलिस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स लाइक जिसमें हम एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रीज, सोशल वेलफेयर एक्सेट्रा। और गवर्नमेंट वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सिडी देती है, पेंशन देती है, स्कॉलरशिप देती है बच्चों को, इकोनॉमिक प्लानिंग करती है, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रा करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो हमारा इंफ्रा है गवर्नमेंट का वो करती है फॉर डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ के लिए। वेरियस सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अर्न्स इनकम फ्रॉम टैक्स। गवर्नमेंट को टैक्सेस से मिलती है, नॉन टैक्स सोर्सेज से मिलती है। टैक्स सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूड गुड्स सर्विस टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स, एक्साइज टैक्स एक्सेट्रा। नॉन टैक्स यानी गवर्नमेंट इंक्लूड वेरियस टाइप्स ऑफ फीस, फाइन्स, डोनेशंस एक्सेट्रा। डेफिसिट फाइनेंसिंग। घाटा। डेफिसिट मतलब घाटा। समटाइम्स गवर्नमेंट को हमें डेफिसिट बजट भी फेस करना पड़ जाता है। ये हैपन्स व्हेन गवर्नमेंट एक्सीड इट्स इनकम। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है अपनी इनकम को बढ़ा देता है। ये दिस इज़ बिकॉज गवर्नमेंट वर्क्स एज वेलफेयर एजेंसी एंड समटाइम्स इट हैज़ टू मेक एक्सपेंडिचर विच इज़ फार फ्रॉम एज इनकम। इस सिचुएशन में गवर्नमेंट हैज़ टू सफ़र लॉसेस इन बजट। इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम गवर्नमेंट हैज़ टू अरेंज मनी। गवर्नमेंट को अपने बजट वापस लेने के लिए, लॉसेस को कवर अप करने के लिए गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होते हैं, अरेंज करने पड़ते हैं फ्रॉम अदर मीन्स सो दैट इट कैन मेक एक्सपेंडिचर, अलग अलग तरीक़ों से। These arrangement of finance to overcome deficit the budget is called deficit financing. इस केस ज़्यादातर इस केसेस में the government arranges the money by borrowing from RBI, which provides money to the government by printing more currency notes. गवर्नमेंट जो है वो पैसे RBI से लेती है जो कि उन्हें मनी देती है और पैसे करेंसी नोट्स छाप के। इन दिस वे RBI हेल्प द गवर्नमेंट टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट इन बजट। नेक्स्ट, पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस होता है टू वर्ड से बना, लाइक पब्लिक एंड फाइनेंस। हियर पब्लिक मीन्स द ग्रुप ऑफ पीपल विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट। एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि रिप्रेजेंट होता है गवर्नमेंट से। सो अल्टीमेटली पब्लिक मीन्स द गवर्नमेंट। ठीक है। द वर्ड फाइनेंस मीन्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। हमारी गवर्नमेंट के फाइनेंशियल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज रिलेटेड विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सो Public finance means financial resources of the government. All the resources related with income and expenditure of the government. जो भी resources income या expenditure related है government के. It should kept in mind that here government means both state and government. यहाँ पे government दोनों तरह की है, state government भी and state government भी and central government भी. So in public finance we study income expenditure related to government. In the income aspect we study various sources of income government like various tax हो गए, नॉन टैक्स हो गए, एक्सपेंडिचर एक्सपेक्ट हो गए. We study various expenditure items of the government, that is development, non-development expenditure of the government, planned and non-planned expenditure of the government, etc. and many more. Now public debt. Debt मतलब हम जो लोन चुका ना सके उसे हम डेब्ट कहते हैं. जब गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है बजट इकोनॉमी का, फर्स्ट इट मेक्स प्लान फॉर इट्स एक्सपेंडिचर, देन इट मेक्स फॉर इनकम. पहले वो एक्सपेंडिचर का प्लान करती है, फिर इनकम का. ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है टू मेक एक्सपेंडिचर ऑन सर्टेन आइटम्स वेदर एनी इनकम इज़ रिसीव्ड फ्रॉम दोज आइटम्स और नॉट. अगर इनकम मिले या ना मिले फिर भी गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि पहले एक्सपेंडिचर करे सर्टेन आइटम्स पे इन ऑर्डर टू प्रूव इट्स वेलफेयर एजेंसी. नेक्स्ट पेज. सो देयर आर मैनी चेंजेस ऑफ लॉस इन बजट ऑफ गवर्नमेंट. बहुत से चेंजेस आते हैं लॉस इन बजट ऑफ गवर्नमेंट. बट इन केस प्राइवेट बजट, अ प्राइवेट पर्सन फर्स्ट थिंक अबाउट हिज इनकम देन आफ्टर हिज एक्सपेंडिचर, सो देयर आर लिटल चांसेस ऑफ लॉस इन प्राइवेट बजट. अगर प्राइवेट बजट जो होता है, प्राइवेट पर्सन जो है वो पहले अपनी इनकम के बारे में सोचे, उसके बाद एक्सपेंडिचर के बारे में सोचे, तो स्लाइटली से लिटल चेंजेस हो सकते हैं लॉस इन प्राइवेट. एज वी नो दी sources of income of the government are limited in relation to its expenditure. हमें पता है
कि जो सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ गवर्नमेंट है वो लिमिटेड रिलेशन है एक्सपेंडिचर के। वेन एवर जब भी गवर्नमेंट को शॉर्टेज होती है फंड्स की इन ऑर्डर टू मेक एक्सपेंडिचर ऑन सर्टेन एसेंशियल आइटम्स, तो गवर्नमेंट को बोरो करने पड़ते हैं सम फंड्स अदर डेप्ट से टू फॉर्म अदर डेप्ट्स, दूसरों से लेने पड़ते हैं। सो ऑल टाइप्स ऑफ डेप्ट आर टेकन बाय गवर्नमेंट फ्रॉम एनी सोर्सेज, दैट इज इंटरनल सोर्सेज विद इन द कंट्री और एक्सटर्नल सोर्सेज और फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द कंट्री, दैट इज कॉल्ड पब्लिक डेप्ट। ग्रोथ रेट सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है पॉलिसीज का pursued by government of any nation is to increase the growth rate of the economy so that the standard of living of people can be raised. ग्रोथ रेट बढ़ेगी तभी तो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट बढ़ेगी, तभी पीपल का स्टैंडर्ड ऑफ पीपल का लिविंग जो है वो बढ़ेगा। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री टू measure its growth rate, measure and write its growth rate. The growth rate of any country can be defined as percentage change in its gross domestic product in any particular year as compared to previous year. Gross domestic product, that is GDP. The most important full form is for 10th class, that is gross domestic product. And what is gross domestic product? So as per given, gross domestic product of a country consists of three words named gross, which means total, domestic means domestic territory of the country, and product means production, which means production. So gross domestic product of a country means total production of a final goods and services within domestic territory of a country in an accounting year. For example, अगर gross domestic product of a country is rupees 100 crore in previous year and this year it is 110 crore, then growth rate can be calculated as GDP of current year minus GDP of previous year divided by GDP of previous year into 100 year, and this is the important sum. Now let's come to BOP, balance of payment. It is also very important when a country makes economic transactions with the rest of the world. It has to maintain an account of these economic transactions, and this account is called balance of payment. जब भी country economics transaction करती है बाकी के वर्ल्ड के साथ अपनी कंट्री को छोड़ के, तो उसको एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बनानी पड़ती है, अकाउंट बनाना पड़ता है इसका, अकाउंट ऑफ दिस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। तो उसी अकाउंट को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। आज के ज़माने में इन मॉडर्न टाइम्स एवरी कंट्री, सारी कंट्रीज के पास ओपन इकोनॉमी है, एंड ओपन इकोनॉमी इज़ वन विच हैज़ इट्स इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल ट्रांजैक्शंस एक्सेट्रा। मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी का सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग होता है एनी पॉलिसी डील्स विद डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। कोई भी पॉलिसी जो डील करती है मनी की डिमांड या सप्लाई के साथ, उसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी रेफर विच इज रिलेटेड विद मनी इन द इकोनॉमी। व्हेन वी टॉक अबाउट मनी देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ मनी, दैट इज डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई फॉर मनी। जब भी हम मनी की बात करते हैं तो दो ही एस्पेक्ट्स आते हैं मनी के, उन्हें हम कहते हैं दी डिमांड फॉर मनी एंड दी सप्लाई फॉर मनी। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि कैसे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी कैन बी कंट्रोल्ड इन इकोनॉमी। एज फार एज सप्लाई ऑफ मनी इज कंसर्न, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय RBI एंड द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। जो सप्लाई ऑफ मनी है वो कंट्रोल किससे होती है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, और हमारी इंडियन गवर्नमेंट से। और जो डिमांड फॉर मनी डिपेंड है डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। जो मनी की डिमांड है वो किस पे डिपेंड है? गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी इकोनॉमी है। इफ़ देयर इज़ मोर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी तो विल मोर डिमांड फॉर मनी। वाइस वर्सा मीन्स इसके उल्टा, अगर डिमांड गुड्स की कम होगी तो ऑब्वियस है कि पैसे की डिमांड भी कम होगी। मॉनेटरी पॉलिसी इसका मतलब है, सो मॉनेटरी पॉलिसी इज़ दैट पॉलिसी by which the central bank and the government of the country control demand and the supply of the achievement of certain objectives. अभी मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी बुक के हिसाब से 5 इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं: बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशो, सैचुरेटेड लिक्विडिटी रेशो, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड रेपो रेट। बैंक रेट एक ऐसा रेट है जो सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री
ऑफ एनी कंट्री लेंड्स टू कमर्शियल बैंक। जैसा कि जो मैं आपको बताती हूँ, जो हमारा रिश्ता होता है कमर्शियल बैंक के साथ, जैसे कि हम लोन लेने जाते हैं कमर्शियल बैंक से, तो हमें उनको लोन के बदले साथ में इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। वैसा ही कमर्शियल बैंक भी करता है। सेंट्रल बैंक जब कमर्शियल बैंक को पैसे देता है तो वो उनके साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट साथ में लेता है। जो रिश्ता पब्लिक का कमर्शियल बैंक के साथ होता है वही कमर्शियल बैंक का सेंट्रल बैंक के साथ होता है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को पैसे देता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या कहते हैं? बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशो। कमर्शियल बैंक को ये ज़रूरी होता है अपने सर्टेन परसेंटेज ऑफ जो बैंक के एसेट्स हैं वो सेंट्रल बैंक को दे। दिस इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशो। सैचुरेटेड लिक्विडिटी रेशो, सैचुरेटेड लिक्विडिटी रेशो रेफर होता है मिनिमम परसेंटेज ऑफ द बैंक टोटल डिपॉजिट विच बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू होल्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश और लिक्विड एसेट एज पर सेंट्रल बैंक रेगुलेशंस। जो कि हमारे बैंक अकाउंट में ज़रूरी होता है कि हमें मिनिमम लिमिट इतनी रखनी है, उसी को हम कहते हैं सैचुरेटेड लिक्विडिटी रेशो। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन में होता है सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंसेस द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी बाय सेलिंग सिक्योरिटीज़ हेल्ड बाय इट। को ओपनली कोई भी सिक्योरिटीज़ खरीदता है, बेचता है, उसको हम सिंपल लैंग्वेज में ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। रेपो रेट, रेपो रेट रेफर्स टू रेट विच एट कमर्शियल बैंक बोरो शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम सेंट्रल बैंक बाय प्लेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ टू इट। जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को अपनी सिक्योरिटी बेचता है और उनसे अब कमर्शियल बैंक से शॉर्ट टर्म लोन्स को लेता है, सेंट्रल बैंक से कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म लोन्स को लेता है, तो उसे रेपो रेट कहते हैं। अपनी सिक्योरिटीज़ बेचता है कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को, और सेंट्रल बैंक से वो लोन लेता है, शॉर्ट टर्म लोन, कुछ टाइम का लोन जिसे हम कहते हैं, उसे हम रेपो रेट कहते हैं। फिस्कल पॉलिसी, so the word fiscal has been derived from fisc word. Fisc means treasury. So fiscal policy is also related with treasury of the government. As we know that the amount in the treasury of the government depends upon two things, that is income of the government and the expenditure of the government. अगर income of the government ज़्यादा होती है तो expenditure कम होता है, then there will be more money available in the government treasury. अगर income of the government कम होती है तो expenditure ज़्यादा होता है, then there will be less amount available in the government treasury. So that's all, the chapter is over. Now the important long question of this chapter are firstly monetary policy. It is important. Instruments of monetary policy, this is also very important. Differentiate between monetary and fiscal policy. GDP equation, this is also for practical equation. BOP is also important. Or government budget, yeah, types of inflation. In short, this is the whole chapter is important, but for long question monetary policy, fiscal policy is important, concept of macroeconomics is important, and government budget is important. Otherwise we have to do whole things. In the end of the year I'll told you important questions according to board, so you can done this, that benefits for your exam. Thank you, have a nice day. After 5 to 6 days I will upload the video of chapter 2 of economics, and the name of chapter 2 is, let me see one time, the name of chapter 2 of economics is, that is development and its measure. See, development and its measure. So after some days I'll upload this, then you will prepare this. Okay, thank you, have a nice day.